Hi students. So till now we have already discussed about certain sexual transmitted diseases. We were discussing sexual transmitted diseases. So what are actually the sexual what are actually we call the sexual transmitted diseases? किस disease को आप sexual transmitted disease कह सकते हैं? So you can write down the definition also. See, the diseases or infections which are transmitted through sexual intercourse with infected person are collectively called sexually transmitted disease or venereal disease भी कहते हैं इसे venereal 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 disease और reproductive tract infection ये भी कहते हैं इसे. So it has different names. STDs, VD that is venereal disease or RTI that is reproductive tract infection. ठीक है. So जो डिजीज रिप्रोडक्टिव मतलब ऑर्गन के थ्रू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरकोर्स इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल आर नोन एज STDs or sexually transmitted disease, and in that we have discussed certain diseases already. Last disease what we discussed, that was syphilis. So it has three different stages: the primary stage, secondary stage and tertiary stage. And it's a bacterial disease. It is caused by bacteria. So the tertiary stage, in the last lectures we have discussed in detail what happens in the tertiary stage, that bacteria spread in the internal organs as well, because it is transplacental. So it can also go to it can also affect the baby as well. So we have discussed that in detail. So in today's lecture we'll continue and we'll discuss the next STD disease which we need to discuss. Okay, so the next STD disease is hepatitis B. Now hepatitis B, first of all, the hepatitis B, it is a viral disease. That means it's caused by virus. Okay, and hepatitis B is the pathogen of the hepatitis B is hepatitis B virus. तो कौन सा वायरस है जो हेपेटाइटिस कॉज करता है? दैट इज योर हेपेटाइटिस बी वायरस. हेपेटाइटिस बी वायरस, राइट. देन सिम्टम्स क्या है इनका? व्हाट आर द सिम्टम्स? एंड द वायरस व्हाट इज दिस HBV वायरस हम इसे कह सकते हैं शॉर्ट में, which is having DNA. So that's why हम इसे कहते हैं DNA वायरस also. सिम्टम्स क्या क्या है? Its symptoms include fatigue, jaundice, that is yellowing of the skin. Jaundice means yellowing of the skin. Then persistent low-grade fever. Continuously fever रहेगा, लेकिन आपका low grade मतलब normal temperature जो body है उससे ज़्यादा temperature रहेगा body का, which is somewhat fever-like, but the temperature will not going to increase further. इसे बोलते हैं low grade fever. ठीक है. रैश एंड एब्डोमिनल पेन. और क्या होगा? बॉडी में रैशेस आएंगे और एब्डोमेन में पेन होगा. ठीक है. सो देयर विल बी एब्डोमिनल पेन. इट कैन कॉज खिरोसिस और पॉसिबली लीवर कैंसर. देखो खिरोसिस का मतलब होता है, ये हम आगे इवोल्यूशन चैप्टर है उसके बाद जो हमारा चैप्टर आएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे सारे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डिजीजेस caused by different microorganisms including viruses as well. So वहां पे हम हेपेटाइटिस के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. फिर भी आप यहाँ पे जान लीजिए खिरोसिस का मतलब होता है जो लिवर सेल्स है, जो लिवर है वो ठीक से काम नहीं करता, उसका एफिशिएंसी और उसका जो फंक्शनैलिटी है वो खराब हो जाता है, वो नहीं कर पाते हैं काम. उसके जो हेपेटोसाइट्स जो होते हैं, मतलब सेल्स होते हैं, they are not actually able to work properly or functional with its full capacity or health नॉर्मली सिंपली. ठीक है. तो लिवर डैमेज हो जाता है. किरोसिस का मतलब सिंपली आप ये जान सकते हो, लिवर डैमेज हो जाता है. और क्या हो सकता है अगर किसी को ये डिजीज हेपेटाइटिस बी है तो क्या हो सकता है? इट कैन आल्सो लीड टू लिवर कैंसर एज वेल. ठीक है. तो अल्टीमेटली लिवर कैंसर भी हो सकता है. ठीक है. अब जो इसको डायग्नोज हम कैसे करते हैं? देखो एड्स कैन बी डायग्नोज बाय एलिसा, लेकिन इसको हम कैसे डायग्नोज करते हैं? इसके लिए जो टेक्निक्स है, that is by there is a test that is called Australian antigen test. ठीक है. तो एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं Australian antigen test. So hepatitis B can be diagnosed by Australian antigen test
which is now also called hepatitis B surface antigen. ठीक है, तो अभी हम उसे क्या कहते हैं, उसका नया नाम हमने दिया है, उसका नाम है हेपेटाइटिस बी surface antigen. So that is a name of that is a new name of this test which help us to diagnose hepatitis B. तो अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है और उसके ये सारे सिम्टम्स हमें मिले so what we can do, we can do a confirm test कि उनको हेपेटाइटिस बी है या नहीं है, ये पता कर सकते हैं आप कैसे, एक टेस्ट के द्वारा। उस टेस्ट का नाम है ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट, एंड अभी वो पहले कहते थे हम, अभी उसका नाम बदल दिया गया है, उसे हम अभी कहते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट और एंटीजन, दैट्स ऑल। ओके, और क्या है, इसको हम जैसे मैंने बताया शुरू में, एड्स को हम जब एड्स जो बीमारी है उसको हम डायग्नोस करने के लिए एलिसा यूज करते हैं, तो वैसे ही हेपेटाइटिस बी में भी हम एलिसा यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रिसाइज डायग्नोस्टिक जो टेक्निक है, टेस्ट है, वो अवेलेबल है, जिसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट। द क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस, इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन कैसे होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है तो सेक्सुअल ट्रांसमिट होगा ही। इसके अलावा और क्या मोड्स है? सो लेट अस डिस्कस। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन मे बी बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सेक्सुअल कांटेक्ट, देन सलाइवा, from the saliva, one saliva of one person to another person by saliva, through tears, then intravenous drug abuse। ठीक है, अब इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज मतलब क्या है? जैसे क्या होता है कि there are different types of drug also, we'll also discuss that alcohol and drug abuse also in the upcoming chapters are there, we'll discuss। तो उसमें बहुत तरह के ड्रग्स होते हैं, हेरोइन, मॉर्फिन, हेरोइन, देन कोकेन, ठीक है, और बहुत सारा के साथ marijuana, we'll discuss one by one all। तो ये जो ड्रग्स है, इसके लेने के, इसको अपने बॉडी में कंज्यूम करने के लिए लोग बहुत तरह के मतलब तरीके यूज करते हैं। उसमें से एक तरीका है कि दे simply use a syringe and they actually inject that drug directly inside their ब्लड सिस्टम, इनसाइड देयर बॉडी। ठीक है, तो अगर सेम सीरीज किसी और ने भी यूज कर लिया तो उसे भी ये डिजीज हो सकता है, जैसे कि एड्स में होता है, तो बिल्कुल वैसा ही है इसके केस में भी। ठीक है, देन टैटूइंग मतलब आजकल लोग अपने बॉडी में बहुत तरह के टैटू बनाते हैं। तो मान लीजिए जो सीरीज यूज करके या जो निडल यूज करके, सीरीज नहीं कहूंगा, दैट इज अ रॉन्ग वर्ड, निडल शुड बी द राइट वर्ड। सो जो निडल यूज करके अगर कोई टैटू बनाता है, सेम निडल, अगर जिसको मान लीजिए कि पर्सन ए को ए ने टैटू बनवाया और उसमें जो टैटू आर्टिस्ट है उसने जो निडल यूज किया, वो सेम निडल उसने बी जो कस्टमर है उस पर भी यूज किया, और जो ए कस्टमर था उसके बॉडी में ये हेपेटाइटिस बी था, तो फिर क्या है, बी कस्टमर को भी जा सकता है। दैट इज वन ऑफ द वे। देन ईयर एंड नोज पियर्सिंग, then sharing of razors etc। ठीक है, तो पियर्सिंग मतलब क्या होता है, नाक में, कान में लोग आजकल बहुत तरह के ये करते हैं, मतलब what we can say, they're making pores and they're actually the piercing is like people are doing to wear certain types of jewelry, okay, to decorate themselves। So that is also can cause that is also can be a way of transmission of the hepatitis B from one person to another person। Why? Because here also for piercing, the artist is using needle। So ठीक है, so that is a reason it is also can transmitted in that way। अच्छा, शेयरिंग ऑफ रेजर also, मान लीजिए किसी एक हॉस्टल में बहुत सारे लड़के रहते हैं, या फिर किसी एक फ्लैट में there are some flatmates who are living together, एंड किसी एक फ्लैटमेट को है हेपेटाइटिस बी और उसका जो रेजर है शेविंग करने के लिए किसी दूसरे ने भी यूज कर लिया, तो उसको भी हो सकता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इंक्यूबेशन पीरियड की बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दिस हेपेटाइटिस बी डिजीज? इट इज अबाउट 30 to 80 days। ट्रीटमेंट क्या है? इट इज क्यूरेबल एसटीडी, ये ठीक हो सकता है। ठीक है, इट्स ए क्यूरेबल एसटीडीज। सो द वैक्सीन्स आर एक्चुअली अवेलेबल। ठीक है, vaccines are available to what we actually vaccines actually produced through recombinant DNA technology, and those vaccines are available to prevent hepatitis B infection। ठीक है, हेपेटाइटिस के बहुत सारे वैरायटीज है, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, हम बात करेंगे उस चैप्टर में, अभी नहीं। तो let us move to the next
disease. And before that, you can take your points what I have discussed till now. So the vaccines are also available. Ready-made antibodies are injected. Vaccine क्या होता है आप सबको पता होता है. It's a passive immunity. ठीक है. So example क्या है, ग्लोब्यूलिन, एंटीजन, HBsAg. ठीक है. तो ये सब हम DNA जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके वैक्सीन बनाते हैं. और वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन आपको पता होगा, वैक्सीन मींस व्हाट, वैक्सीन इज एक्चुअली वीकेंड पैथोजन. तो हम क्या करते हैं, पैथोजन को बहुत वीक कर देते हैं. या तो पैथोजन का जो जैसे कि इस केस में वायरस है, तो हम जो पैथोजन का जो डीएनए का इफेक्टिवनेस है, ठीक है, उसको भी हम उसको इफेक्ट कर सकते हैं. उसको हम वी कैन कंट्रोल इट, और वी कैन we can design the vaccine in such a way, we can prepare the vaccine in such a way that it can also which actually finally protect the organism. Okay. Now, लेकिन इसमें कुछ और फैक्ट्स आपको जानना चाहिए कि जो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी इज एक्चुअली मोर इन्फेक्शियस देन एड्स. मतलब एड्स से ज्यादा फैलता है. एड्स जिस तेजी से फैलता है उससे ज्यादा इन्फेक्शियस है ये हेपेटाइटिस बी. ठीक है. नाउ इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज बेटर टू प्रिवेंट योरसेल्फ. सो देयर इज अ सेइंग दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो हर डिजीज के केस में, इस डिजीज के केस में भी हम ये कह सकते हैं कि प्रिवेंशन करना ही सबसे बेहतर है. जैसे हमने डिस्कस किया, टैटू बनाने से हो सकता है, दूसरों का रेजर यूज करने से हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, सलाइवा से हो सकता है, टीयर से हो सकता है. तो हमें ये प्रिकॉशंस रखना होगा कि हम किसी के टीयर, सलाइवा या फिर आपके जो किसी और का नीडल्स हमारे बॉडी में यूज ना हो जाए. तो इस सब चीजों का हमें ध्यान रखना होगा. तो अगर हम रखेंगे ऐसा ध्यान, तो ये हम इस जैसी बीमारी से हम बच सकते हैं. ठीक है. ये तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही मोड नहीं है ट्रांसमिशन का. हमने डिस्कस किया, दो इट इज वे डिस्कसिंग अंडर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, but it has other modes of transmission as well. ठीक है. और क्या है, देखिए जो हेपेटाइटिस बी है ये हो सकता है किसी को कंटामिनेटेड फूड से भी हो सकता है, कंटामिनेटेड वाटर से भी हो सकता है. तो इसीलिए जब भी हम बाहर जाते हैं, कभी भी मान लीजिए हम ट्रैवल करते हैं या हम कहीं बाहर जाते हैं, so it is always suggested that you should carry your own water bottle. ठीक है. पहला तो ये है. दूसरा कि अगर आप अपना वाटर बॉटल कैरी नहीं कर सकते हैं तो क्या करना चाहिए, कहीं से भी पानी नहीं पीना चाहिए. You should buy a standardized, ISI mark water bottle which is available in the market. You should buy that and you should drink that water. ठीक है. कहीं से भी जाके पानी अननोन एरिया में नहीं पीना चाहिए, उससे भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है. Fine. So the next disease that is going to discuss, that is also a sexually transmitted disease, but it is also having some other modes of transmission like drug transfusion and also through the drugs abuse. जैसे हमने अभी डिस्कस किया, बिल्कुल हेपेटाइटिस के केस में भी जैसा था इसमें भी ऐसा है, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि ये उतना ज्यादा इन्फेक्शियस नहीं है. क्यों? क्योंकि ये सलाइवा से नहीं जाता, टीयर से नहीं जाता. ठीक है. तो देयर इज अ डिफरेंस. ठीक है. आप रेजर यूज करने से भी नहीं जाएगा, ऐसे नहीं होता है इसमें. ठीक है. इट इज वेरी प्रिसाइज. या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होगा, या तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होगा, या तो प्रेग्नेंट लेडी अगर है कोई, उसका अगर लेडी को अगर एड्स का वायरस है तो उसके बेबी में भी ये ट्रांसफर हो सकता है. दिस आर द बेसिक स्पेसिफिक वे थ्रू व्हिच दीस वायरसेस कैन ट्रांसफर. राइट. सो लेट अस डिस्कस अबाउट एड्स. एड्स बीइंग एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. अब देखो एड्स जो है ना, इट इज अ कंडीशन, इट इज नॉट एक्चुअली द डिजीज. ओके. आपको ये समझना होगा कि एड्स जो है, इट इज एक्चुअली कॉज्ड बाय again it is a viral disease, and the virus is having a ssRNA, and that RNA is because the virus is having that RNA, that's why we call it as retrovirus. ठीक है. और इस वायरस का कॉमन नेम क्या है, ह्यूमन इम्यूनोवायरस. ठीक है. तो डायग्राम आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन में होगा. सो यू कैन सी द डायग्राम. सो यू कैन सी दिस इज हैविंग this diagrammatic representation, or this the structure of this human immunovirus or HIV is actually very unique, because it is having a very unique type of structure. So that is why it is very difficult for our immune system to develop antibodies. So let us discuss that. So अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि outermost
जो पार्ट है उसमें हम देख सकते हैं there is a structure outgrowth like structures are there. Those structures are nothing, these are GP120 glycoprotein. ठीक है, और अंदर में इनसाइड हम जो अंदर है हम उसमें देख सकते हैं क्या है, आरएनए अवेलेबल है, और आरएनए के ऊपर हम क्या देख सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर्स अवेलेबल है. ठीक है, so let us discuss that what is the reason that our body is not able to make the antibodies against this virus to cure ourselves, right? अब देखो inside this virus the protein is actually single stranded. The genetic material is actually a single stranded RNA. So that is single stranded stands for SS. SS means single stranded RNA. ठीक है, they have a single stranded RNA. That means they have only a single strand. Normally DNA में हमने क्या पढ़ा है, आपने अभी तक पढ़ा होगा कि it is double stranded, but यहाँ पे जो RNA it is a single stranded RNA. What this viruses have. Okay, and along with this RNA, reverse transcriptase is also present, which is common in all retrovirus. जितने भी retrovirus है, जिनमें retrovirus उसको बोलते हैं हम जिसपे single stranded RNA है उनको retrovirus बोलते हैं, और सारे retrovirus में ये जो reverse transcriptase है ये available होता है. ठीक है. Now outside the protein capsid, ठीक है, protein capsid मतलब जो coating है वायरस का. ठीक है, so outside the protein capsid there is one more layer. मतलब डीएनए को कवर करने के लिए एक लेयर है, प्रोटीन कैप्सिड है, उसके बाहर में भी एक लेयर है, एंड दिस लेयर हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक है, एक बार देख लेते हैं डायग्राम को तो आपको क्लियर होगा. ये जो आरएनए को कवर कर रहा है, दिस इज एक्चुअली कैप्सिड. ठीक है, एंड आफ्टर दैट देयर इज वन मोर लेयर व्हिच इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक है, जो आउटरमोस्ट लेयर है, जो उसके बाहर वाला लेयर, प्रोटीन कैप्सिड जो अंदर वाला है, और बाहर में जो है उसको बोलते हैं, उसको किससे बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, एंड व्हिच इज नोन एज GP120. ठीक है, एंड दिस इज एन एंटीजन, एंड यही जो है यही एक्चुअली एंटीजन है. ठीक है, लेकिन अभी हम बात करेंगे क्यों हमारे बॉडी में हम जो एंटीजन, अगर किसी कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा तो उसका एंटीजन अगर हमारे बॉडी में आता है, सो इन रिस्पॉन्स आवर बॉडी शुड मेक एंटीबॉडी. सो व्हाई इन केस ऑफ दीज human immunovirus our body is not able to actually make the antibodies? What is the reason, right? So let us discuss. If our body receives any types of antigen, then our body produces antibodies, right? Then the question arises that why our body is not able to produce antibody, right? The reason is this. अब देखो क्या होता है, जो GP120 जो आपका पार्ट है, जो आउटर मोस्ट पार्ट है इस वायरस का, वो कभी कभी जो है वो नेकेड रहता है, कभी कभी कवर्ड भी रहता है. ठीक है, और जिससे ये कवर्ड रहता है नॉर्मली, वो जो कवर है दैट इज द प्रोटेक्टिव लेयर और द कवर व्हिच इज एक्चुअली कवरिंग दिस GP120 पार्ट ऑफ द HIV वायरस, इट इज नॉन एंटीजेनिक इन नेचर. तो अगर वो फॉरेन पार्टिकल जो है वो उसमें कोई एंटीजन सब्सटेंस है ही नहीं, वो एंटीजन सब्सटेंस से बना ही नहीं है, तो हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड में एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं. तो इसीलिए वायरस के जो आउटर मोस्ट पार्ट है, जीपी प्रोटीन का जो कवरिंग है रहता है, वो बेसिकली क्या होता है, नॉन एंटीजेनिक होता है. ठीक है, और मान लो अगर वो अगर एक्सपोज भी करता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मैंने एक्सपोज करता है, दैट इज ऑल्सो फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय के लिए एक्सपोज करता है. ठीक है, तो एंटीबॉडी बनने के लिए हमारे बॉडी में जो एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनाता है हमारा बॉडी, उसके लिए एक टाइम रिक्वायरमेंट होता है, एक समय चाहिए होता है, कि मिनिमम टाइम जरूरत होता है. लेकिन ये जो प्रोटीन कैप्सिड है ये थोड़ी देर के लिए, उससे भी कम समय के लिए ओपन होंगे, फिर वो बंद हो जाते हैं. ठीक है, इसीलिए हमारे बॉडी में हमारा बॉडी जो हमारा सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू it is very difficult for the immune system to develop the antibody against this type of viruses. So that is the reason. समझ में आया? एंटीजन जो एक्सपोज होता है वो क्या होता है, एक तो कवर रहेगा, और अगर कवर रहा तो क्या होता है, कभी कभी ये खुलता है. तो दूसरे समय इसलिए बोला कि कभी नेकेड होता है तो कभी कवर होता है, मतलब जो कवरिंग है वो थोड़ी देर के लिए खुल जाता है. क्यों? क्योंकि आपका जो ये वायरस है इसको दूसरे हमारे सेल को भी टारगेट करना है, तो उसके लिए ये जो कवरिंग है थोड़ा खुलता है. लेकिन वो जो खुलता है, जो टाइमिंग है, जो टाइम जिस समय, जितने समय के लिए खुलता है, दैट इज वेरी शॉर्ट. इसलिए बाय दैट टाइम आवर बॉडी इज नॉट एबल टू रिएक्ट एंड एक्चुअली फॉर्म द एंटीबॉडी. इसीलिए हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी HIV के खिलाफ नहीं बना पाते.
दैट इज द रीजन. ठीक है. So the antigen is exposed only for a very short period of time when the virus infect the host cell. ठीक है. तो हमारे बॉडी में जो होस्ट सेल, हमारे बॉडी के जो ह्यूमन सेल्स हैं, उसको जब ये इन्फेक्ट करता है तो ये जो एंटीजन है उसके बॉडी में, मतलब सॉरी जो वायरस के पास, वो बहुत थोड़े समय के लिए एक्सपोज होता है, इसीलिए हम एंटीबॉडी हमारी बॉडी बना नहीं पाती है. दैट इज द रीजन. So let us discuss about some history about this disease. So the first case was reported in 1981. सबसे पहला केस कहाँ पे, सबसे पहले केस कब रिपोर्ट हुआ था? 1981. ठीक है. और इंडिया में फर्स्ट कब हुआ था? 1986, विद इन जस्ट आफ्टर 5 years. और वो कहाँ पे हुआ था? इन चेन्नई. ठीक है. और दिसंबर 1 को हम एक्चुअली एज ए एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं. और यू कैन सी द सिंबल. तो आपने काफी बार शायद बहुत सारे इवेंट्स में या हमारे क्रिकेटर्स को भी आपने देखा होगा ड्यूरिंग दिस एड्स डे दे वेयर दिस रेड रिबन. दिस इज द रेड रिबन. ठीक है. सो दिस इज द सिंबल ऑफ द एड्स डे सेलिब्रेशन, और इट इज सिंबलाइजिंग दैट द सेलिब्रेशन, not a celebration actually. We observe the day as a AIDS Day to actually remember that how many people are dying because of this, to give a homage or to give a respect to those people who died because of this this disease or this virus. And also we want to spread awareness to the public, and they should be taking care of themselves, and they should be take preventions that they should not get this disease at all. ठीक है. चलिए, सिम्टम्स क्या होते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आप मतलब जब HIV का जो सिम्टम्स है, ये पता ही नहीं कर सके कि HIV अगर किसी के बॉडी में आ चुका है या इन्फेक्ट हो चुका है, अब तक हमारे साइंस जो कह रही है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वो काफी दिनों तक, हो सकता है 5 साल 10 साल, कोई भी जो है बॉडी में उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है ना, वो बहुत लंबा है. 10 साल 15 साल 20 साल, वो कोई भी इफेक्ट आपको समझ में नहीं, उस पेशेंट को समझ में नहीं आएगा. लेकिन आफ्टर दैट what is actually the HIV is doing, it is slowly decrease the helper T cell and the lymphocytic cells which is responsible for our immune system. helper T cell को खत्म कर देते हैं धीरे धीरे. अब helper T cell जो क्या करती है ना, ये हमारे B lymphocyte को स्टिमुलेट करती है एंटीबॉडीज बनाने के लिए. तो अगर helper T cell होगा ही नहीं तो it is not going to stimulate B lymphocyte. And if the B lymphocytes are not getting stimulated, they are not going to produce any antibodies. So as a result, what is happening? Our immune system is going to decrease day by day. ठीक है ना. तो फिर भी अगर हम किसी व्यक्ति को अगर HIV इन्फेक्शन हुआ है तो उसके जो सिम्टम्स है, तो हमने ज्यादातर जो सिम्टम्स ऑब्जर्व किया है वो क्या हो सकता है? They can have mild fever, or the mild infection, loss of weight. They can have vomiting as well, diarrhea. Okay. So these are the basic symptoms what a patient can have immediately after the infection. But it is not necessary that all the patients will have these symptoms. Some patient is not going to show any symptoms at all. Okay, so this is a very tricky virus actually. We can say, like right now the corona is a tricky, but this HIV is more tricky than corona. Okay, and more dangerous than corona. Right now, mild fever. Then mild infection, loss of weight, these are the symptoms, and other symptoms I have also discussed. Now these infections become very serious, which lead to skin cancer also. अब इसमें क्या है कि अगर इन्फेक्शन हो जाए किसी को, जिस पेशेंट में ये इन्फेक्शन दिखेगा, तो it can also lead to some other complications, and it can also lead to other disease like cancer, skin cancer as well. Now during infection at a very early stage, the GP120 of the virus comes in contact with CD4 cells of the host. अभी क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन मतलब HIV वायरस हमारे बॉडी में आता है, तो वो करेगा क्या? हमारे बॉडी का हमारा जो बॉडी में जो होस्ट सेल है, उसमें जो CD4 हमारे बॉडी का जो होस्ट सेल है, CD4 सेल which is a part of immune system, that will interact with this virus. Okay, and during that time the mask of the HIV virus disappear. जैसे मैंने बताया था ना, G120 प्रोटीन में मास्क है, कवर है, सो वो थोड़े समय के लिए डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. लेकिन वो वापस बन जाता है, और ये डिसअपियर होके वापस बनने का जो समय है, that is very short. Okay, and that is the reason the antibody is not getting ready
or our body is not able to produce in response to this antigen, they're not able to produce, the body is not able to produce antibody. Okay? So it disappears for a very short period of time, and which is not enough for the host cell to detect the antigen for antibody preparation. ठीक है? So ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम एड्स के लिए, इसीलिए हम इसका वैक्सीन भी नहीं बना पा रहे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो आपका वायरस जो है बहुत थोड़े समय के लिए एक्सपोज होता है, उसके बाद वापस वो उसका जो कवर है वापस बन जाता है। ठीक है? इसीलिए हम एंटीबॉडी नहीं बना पाते अपने बॉडी पे। मतलब ऐसा है कि मान लीजिए कि कोई छुपा हुआ है किसी एक रूम के अंदर, एक बढ़िया सा एक सिस्टम बना के, और कोई भी उस रूम में जा रहा है तो उसे वो तुरंत निकल के उसको मार रहा है और फिर उसके अंदर जाकर छुप रहा है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। और सपोज एक मान लीजिए एक जंगल इलाका है और एक आदमी है जो कि स्नाइपर है और वो छुप के बैठा हुआ है, जो भी उस इलाके में जा रहा है उसको गोली मार के मार रहा है, लेकिन उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह का सिचुएशन। ठीक है? नाउ हेल्पर टी सेल हेल्प द बी लिम्फोसाइट टू सिंथेसिस एंटीबॉडी। हमने अभी डिस्कस किया कि हेल्पर टी सेल क्या काम करता है। इट इज हेल्पिंग द बी लिम्फोसाइट टू सिंथेसाइज एंटीबॉडी। और ये जो HIV वायरस है ये किसको टारगेट करता है? ये हेल्पर टी सेल को ही टारगेट करता है। इसे धीरे धीरे इसका जो काउंट है उस पेशेंट के बॉडी में घटा देता है, बहुत ही कम कर देता है। इससे होता क्या है? अभी ये मैंने शुरू में आपको कहा था कि एड्स इट्स अ कंडीशन, इट इज नॉट अ डिजीज। क्या कंडीशन है? HIV वायरस जब इन्फेक्ट करेगा पेशेंट को तो इंक्यूबेशन पीरियड जब खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म नहीं, मतलब एक हम बोल सकते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड जो वो वेरी करता है। मतलब होता क्या है कि HIV वायरस अगर किसी पेशेंट के बॉडी में चला गया, सो इट विल इंटरैक्ट विद द होस्ट सेल and slowly it will decrease, it will kill or it will destroy the helper T cell, and the count, the number of helper T cell will decrease slowly। एक ऐसा एक नंबर अचीव कर लेगा, मतलब इतना ज्यादा कम हो जाएगा हेल्पर टी सेल बॉडी में। तो अगर हेल्पर टी सेल बॉडी में नॉर्मल काउंट से बहुत कम हो गया, इसका मतलब है आपका इम्यून सिस्टम, उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम क्या हो गया? इट बिकम वेरी वीक। नाउ इफ द इम्यून सिस्टम इज वेरी वीक, देन द पेशेंट कैन सफर फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ डिजीज। कोई भी डिजीज हो सकता है और दैट कैन बी फेटल फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट। वही होता है। तो एड्स के लिए कोई नहीं मरता। एड्स जो है इट्स अ कंडीशन वेयर इसीलिए इसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब घट जाता है इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो जब इम्यूनिटी घट जाएगा बहुत तो कोई भी डिजीज होकर आदमी मर सकता है। नॉर्मल कॉमन कोल्ड होने से भी मर जाएगा, वायरल फीवर होने से भी वो व्यक्ति जो है वो मर सकता है। ये रीजन होता है जो एड्स पेशेंट का डेथ का रीजन यही होता है, क्योंकि इम्यूनिटी उसकी बॉडी में इतना कम हो जाता है कि वो बाहर के एनवायरनमेंट से किसी भी छोटे इन्फेक्शन से भी अपने आप को बॉडी को वो सेव नहीं कर सकता। ठीक है? सो दैट इज द थिंग। Now inside the host cell the virus get multiplies, as a result the host cell get rupture and the helper T cell are also killed which affect the immune system। वही मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है? Now by that we completed the discussion on the disease that is called AIDS। Now we will go we will continue with our discussion, and the next disease we are going to discuss, that is your genital herpes। ठीक है? तो genital herpes क्या है? Genital herpes is also a disease caused by virus। ठीक है? and the genital herpes का पैथोजन क्या है? herpes simplex virus। क्या है इसका पैथोजन? herpes simplex virus। ठीक है? सिम्टम्स क्या क्या हमें मिलेंगे? देयर आर वेसिक्यूलो पस्ट्यूलर लीजन्स। तो इतना डिटेल में हम अभी बात नहीं करेंगे, तो आप बस इतना जानिए कि देयर आर ब्लिस्टर्स। ठीक है? वाटरी ब्लिस्टर्स ऑन द जेनिटेलिया। जो जेनिटेलिया पार्ट है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जेनिटेलिया है, फीमेल और मेल जेनिटेलिया, उस एरिया में there will be blisters। blisters will form। blisters मतलब it's like somewhat like I believe all of you know what are blisters। okay, so these are watery blisters will form, and it is very painful and it is very dangerous actually। so ये external genitalia में होता है, और also in the pre-anal region। anal के पास, anal जो region है उसके पास भी ये जो watery blisters है वो पेशेंट की बॉडी में इंफेक्शन से हो जाएगा। ठीक है? दैट इज कॉल्ड जेनाइटल हर्पेस। जैसे आप देखिए, अगर कभी आपको अगर गर्म चीज पकड़ लिया आपने, या कुछ हम किसी कह सकते हैं कि अगर आपको
थोड़ा बर्निंग जैसा कुछ हो गया, स्मॉल बर्न इफ यू हैव ऑन द स्किन, तो वहां पे देखना धीरे धीरे थोड़ा सा वाटरी ब्लिस्टर्स बन जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही ब्लिस्टर्स इनके केस में बनेगा, इस डिजीज केस में ही बनेगा। ठीक है, इट इज सिमिलर टू लुक लाइक इट्स लुक वेरी सिमिलर टू दैट एज वेल। नाउ द सिम्टम्स आर मोर सीवियर इन फीमेल। सिम्टम सबसे ज्यादा किसमें होता है सीवियर? इन फीमेल। एंड इन्फेक्शन ऑफ नियोनेट कैन ऑकर इन केस ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्योंकि ये सबसे ज्यादा सीवियर इफेक्ट फीमेल को करता है, फीमेल में सबसे ज्यादा इफेक्ट हमें दिखता है इसका, सीवियर जो सिम्टम्स हमें वो दिखता है। और इट इज लाइक इट इज वेरी फेटल फॉर द बेबी एज वेल इफ द मदर इज प्रेग्नेंट एंड स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। If this blisters actually burst and it affect the baby, so then the fetus, the newborn baby can also die. It is so dangerous, right? So there are some other symptoms also there. There is fever, headache, pain, itching, then vaginal and urethral discharge with tender inguinal, like lymphadenopathy, that is a swelling of the lymph nodes. Lymph node में swelling हो जाना, ये भी एक symptoms है। ठीक है, सो दीज आर अदर सिम्टम्स। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे? हाउ विल डायग्नोस? डिटेक्शन इज कैरिड आउट बाय क्लिनिकल सिम्टम्स। क्लिनिकल सिम्टम्स जो है और डॉक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। और देयर इज सम एंटीजन डिटेक्शन एज वेल, पीसीआर एंड न्यूक्लिक एसिड hybridization is also there. But normally doctor by simply observing and by the symptoms they can also understand that it is a genital herpes or not. Treatment क्या है? The disease is primarily transmitted sexually through genital secretion, but also contact with viroids and genitalia. ठीक है, सॉरी ट्रीटमेंट नहीं, ट्रांसमिशन की बात कर रहे थे हम। ट्रांसमिशन कैसे होता है? सेक्सुअली होता है। ठीक है, हाउ? द डिजीज इज प्राइमरी ट्रांसमिटेड सेक्सुअली थ्रू genital secretions, but also contact with viroids and genitalia. ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे होगा? बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है कि दिस इज इनक्यूरेबल एसटीडी। इट इज नॉट क्यूरेबल, राइट? इट इज नॉट क्यूरेबल, but there are some medicines are available which can actually right now people are having it, but normally if it becomes severe, so it is difficult to cure. It is incurable, right? Next we'll discuss the next disease, and that is your human papilloma virus. इसका नाम है genital warts or human papilloma virus. That is the next disease what we're going to discuss. So human papilloma virus, इसका जो पैथोजन है, that is जो name of the pathogen is also human papilloma virus. ठीक है, और इसका कॉमन डिजीज का नाम है genital warts. ठीक है, इसमें होता क्या है? The warts are appear on external genitalia. External genitalia में warts appear होते हैं, warts बनते हैं। ठीक है, and it can also cause cancer in cervix. This is CER, तो you please correct, यहाँ पे cervix होगा, so this is C, you please correct, this is C, cervix. It is also responsible for tumor formation. एक तो कैंसर हो सकता है इससे, और क्या हो सकता है? ट्यूमर भी बन सकता है। So it is very dangerous. ठीक है, so human papilloma virus जो कि HPV या human papilloma virus कॉज करता है, इसको हम बोलते हैं genital warts। वो जेनेटल जो आपके एक्सटर्नल जेनेटिलिया है वहां पे वॉर्ड बनता है। ठीक है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूमर फॉर्मेशन एंड कैन आल्सो कॉज कैंसर इन सर्विक्स एरिया इन केस ऑफ फीमेल, राइट? ट्रीटमेंट कैसा है? द ट्रीटमेंट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल स्पेशली इन केस ऑफ इंटरनल वॉर्ड्स। अगर अंदर की तरफ अंदर में इंटरनली बॉडी के अंदर वॉर्ड्स बन गए तो बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट मतलब करना होता है। ठीक है, एंड देयर आर सम टेक्निक्स बाय लाइक सर्जरी। क्या करते हैं डॉक्टर? सर्जरी कर सकते हैं, सर्जरी करके वो जो वॉर्ड्स बने उसको वो निकाल देते हैं, दे रिमूव इट। ठीक है, then that means it needs a surgery if it infect inside
if it actually spread inside inside the body there, right? So surgery can be used for the treatment. Next we'll talk about the next STDs we'll talk about, that is your vaginal candidiasis. ठीक है, vaginal candidiasis. इसमें जो causative organism है, that is your Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis ये भी एक है, और जो vaginal candidiasis का है उसका जो causative organism वो है आपका Candida albicans. ठीक है, Candida albicans. और ये जो Candida albicans है, ये जो vaginal candidiasis cause करता है, इससे क्या होता है कि there will be dryness, there will be dryness and the skin will become rough and scaly. Okay, तो इससे जो external genitalia होगा मेल एंड फीमेल केस में, तो there will be the skin will become rough, it will become scaly, there will be itching continuously, and if it is not get treated, then it can also spread to especially in case of female, it can, because it's a vaginal candidiasis, so it can spread in the reproductive tract as well, and it can affect the reproductive tract in a very bad way, right? If it is not treated, then it can also cause some other complications. ठीक है, दूसरे डिजीज को भी ये डेवलप कर देगा अगर इंटरनल ऑर्गन में पहुंच गया तो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट there is one more type of vaginal candidiasis which is caused by protozoa, and the Candida albicans, it is caused by fungus. Basically the fungus is causing the disease, but there is another pathogen which also can cause this disease, that is your protozoa. And in that case, the example what we are going to discuss now, which is what you can see on the screen also, that is Trichomonas vaginalis. ठीक है, and it caused the trichomoniasis, which is actually caused by protozoa. It is somewhat similar to candidiasis, vaginal candidiasis. ठीक है, so these are all the different types of diseases, sexually transmitted diseases, what we have discussed. Apart from, there are some other diseases also. Those diseases are actually caused by, like let us take an example, nematodes. Nematodes are also cause some diseases. ठीक है, then protozoan just now we have discussed, that is your trichomoniasis, that is a disease caused by Trichomonas vaginalis, that is a protozoa. ठीक है, and Candida albicans, that is a fungus which is causing vaginal candidiasis. And even though nematodes also cause certain sexual transmitted diseases, like that is we can take an example of pinworm. Okay, Enterobius vermicularis. Pinworm is also causing sexually transmitted disease. Okay, and that disease is can be transmitted sexually. Okay, then some arthropoda also cause some sexually transmitted disease. Let us take an example of scabies. So scabies एक disease है, उसमें जो arthropoda है, it is ectoparasite actually, मतलब sexually transmitted है, but it is ectoparasite, मतलब जो external genitalia है, outside externally ये affect करता है, internally नहीं. So एग्जाम्पल जो है आर्थ्रोपोडा का जो कॉज करता है स्केबिस, वो है Sarcoptes kbc. Sarcoptes scabibi. Okay, Sarcoptes scabibi. So that is so there are some other examples also. So there is no need to discuss all that in detail. And other diseases and other diseases caused by other different types of pathogens we'll discuss in the chapter of human health and disease in detail, right? So let us move on and discuss the next topic. So the next topic is your assisted reproductive techniques or technologies. Assisted reproductive technologies.
So ये start करने से पहले I will start this in the next lecture, but let us have a discussion before this. देखिए हमने अभी तक हमने क्या किया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात किया, मतलब जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर किसी अगर इंडिविजुअल का है, देन इट कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन प्रॉपर्ली. अगर हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. तो हमने कुछ डिसऑर्डर्स भी देखे थे जब हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ रहे थे. So at the end of the chapter, we discuss certain problems regarding the diseases or disorders regarding the reproductive health. तो अभी देखो ये आर्टिफिशियल असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज हमने डेवलप क्यों किया, पहले हमें तो वो समझना होगा, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहला रीजन है कि इनफर्टिलिटी. पहला क्या होता है? इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी मतलब the individual or the individual male and female, human male and female, because of some reason they don't have the capacity to participate, or they're not able to produce, or they're not able to take actively participate, they're not able to take part in the reproductive system for the like for production of offspring. तो offspring production के लिए वो active नहीं हो पाते, infertile हो जाते हैं. ठीक है, तो infertility एक reason है, मतलब मेन सबसे बड़ा रीजन है, यही रीजन है इनफर्टिलिटी. ठीक है, क्या इसका किसे कहते हैं इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी इज अ फेलियर टू कंसीव विद इन 1 or more years ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड कोइटस, मतलब कॉपुलेशन. राइट, even though after the marriage, if the couple is not not able to have baby for more than 1 or 2 years, then there may be some reason, or there may be some condition of infertility in the male or female. Okay, so infertility कितने तरह का होता है? infertility basically 2 तरह का होता है. प्राइमरी infertility, दूसरा होता है सेकेंडरी infertility. प्राइमरी मतलब it denotes those patients who have never conceived. ठीक है, मतलब ऐसे पेशेंट जो कि जिनका कभी भी मतलब जो एक्चुअली कभी कंसीव नहीं किए बिल्कुल भी. ठीक है. Next, secondary infertility. It indicates the previous pregnancy but failure to conceive the subsequently. एक तो है कि कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हुआ, दूसरा है कि पहले तो प्रेगनेंसी हुआ था लेकिन अभी नहीं हुआ, अभी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रहा है, कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है. तो 2 तरह की इनफर्टिलिटी होते हैं. अब इनफर्टिलिटी दोनों में ही हो सकता है, मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है. तो मेल के बारे में बात करते हैं. मेल में क्या हो सकता है? पहला, क्रिप्टोचोरिडिज्म. ये क्या होता है? हमने पहले ही बात की था. इट इज अ कंडीशन इन विच द टेस्टिस आर अनएबल टू डिसेंड इन स्क्रोटम सैक सो दैट द स्पर्म आर नॉट प्रोड्यूस. ठीक है, एजियोस्पर्मिया जिसको कहते हैं. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एंड पार्ट में भी. दूसरा क्या है? एल्कोहलिज्म कॉज द डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस. अगर कोई मेल है वो बहुत ज्यादा शराब पीता है तो उसके जो स्पर्म है, उसके जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है स्पर्म बनने का, वो इफेक्ट हो जाएगा. तो जो नॉर्मल स्पर्म काउंट है या नॉर्मल जो स्पर्म बनना चाहिए, जितना का अच्छे से बनना चाहिए, हेल्दी स्पर्म बनना चाहिए, वो नहीं बन पाता. सो दैट कैन आल्सो लीड टू इनफर्टिलिटी इन केस ऑफ मेल. देन इम्पोर्टेंसी मतलब द मेल इज अनएबल टू इरेक्ट and penetrate the penis into the vagina of the female. That can also be one of the reason. Next, gonadotropin, that is LH and FSH deficiency. मतलब hormonal deficiency अगर किसी को हो गया, किसी मेल को, तो भी ultimately the testosterone and the other processes which actually this hormone control the spermatogenesis, the gamete formation, all will stop. That can also lead to infertility in case of male. Next, use of therapeutic and antipsychotic drugs for long time. जब कुछ स्पेशल तरह के ड्रग्स होते हैं, जैसे किसी को अगर साइकिक प्रॉब्लम है, वैसे अगर कोई हेवी डोज के ड्रग्स लेता है बहुत दिनों से, तो उनमें भी इनफर्टिलिटी हो सकता है. और क्या है? इमोटाइसीलिया. Sperms are unable to move from vagina to the upper portion of the genital tract of the female. ठीक है, तो sperm जो है, it is not that healthy and it is not that having not that capacity to actually travel all along the length of the vaginal tract until the fallopian tube. So ये भी एक रीजन हो सकते हैं infertility का. ठीक है, so there are some other reasons as well which is not that important to discuss right now. So we'll discuss about the infertility in case of female as well.
and we'll discuss finally कि उसका क्या मतलब possible solutions है. So what we can do, because nowadays our science and medical medicines is very developed. Now we have discovered and we have understood the reproductive system in a well manner, right? So now we can identify the problem of infertility in case of male and female, and if we identify the problem which is known to us, and we can try to treat that condition as well by using certain technologies and techniques. So those techniques which actually help the couple or help the individual to conceive again, those techniques are known as assisted reproductive technologies. So that we will discuss in the next video lecture in detail. And probably if it is in the next video lecture, if I finish this chapter, then we can start with the next chapter, that is evolution. Right? So till then, take care, stay at home, be safe. Thank you. Bye.